Hello students, this is our first video in the International Relations UGC NET PYQ video series. In this video series, we will be covering all the PYQs asked by UGC NET from 2014 up till June 2025 for each topic. So this video is related to the approaches which are present in international relations. This is the part 1 of the approaches video. So the first question which was asked in 2014 was, game theory owes a heavy debt to the seminal work entitled The Theory of Games and Economic Behavior. This is a very famous book of game theory. ठीक है, ये पूरा जो फाउंडेशनल टेक्स्ट होता है ना किसी भी सिस्टम का, वो है ये गेम थ्योरी. ठीक है, फाउंडेशनल टेक्स्ट है. एंड वी हैव बीन आस्क्ड कि उसका ऑथर कौन था. सो द ऑथर ऑफ दिस टेक्स्ट वाज जॉन न्यूमैन एंड ऑस्कर मॉर्गनस्टर्न. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिसंबर 2014 का है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स कंट्रीब्यूटेड टू द इमर्जेंस ऑफ न्यू डिटेंट आफ्टर द कोल्ड वॉर. सो द ऑप्शंस आर प्रेशर बाय द नॉन अलाइन्ड मूवमेंट. नहीं, दिस इज रॉन्ग. The signing of the INF treaty by Reagan and Gorbachev. So this is the correct answer. ठीक है, Gorbachev was USSR के premier थे and Ronald Reagan USA. ठीक है, next question दिसंबर 2014 का है. Which one of the following is not a feature of shopkeeper diplomacy? तो शॉपकीपर डिप्लोमेसी मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ क्या होता है. इसमें दे बेसिकली प्रायोरिटाइज negotiation and economic interests over military conflict. ठीक है, so it is based, इसका options क्या दिए हैं. It is based on a peaceful approach, so this is actually correct. फिर it is a means of diplomacy for maintaining peace through compromise. This is also correct. It is based on the sound business principles of moderation. ठीक है, ये भी करेक्ट है. मॉडरेशन एंड कॉम्प्रोमाइज दोनों होता है उसमें. इट ट्राइज टू सेफगार्ड नेशनल इंटरेस्ट थ्रू वॉर ओनली. नहीं, दिस इज नॉट करेक्ट. दिस इज अ फीचर ऑफ क्लासिकल लिबरलिज्म. ठीक है, नॉट ऑफ शॉपकीपर डिप्लोमेसी. नेक्स्ट क्वेश्चन दिसंबर 2014 का है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग आंसर्स इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग न्यू लिबरलिज्म. ठीक है, न्यू लिबरल विजन लार्जली इवॉल्व्ड ड्यूरिंग द गवर्नमेंट्स ऑफ रोनाल्ड रीगन एंड मार्गरेट थैचर. दिस इज करेक्ट. आपने सुना होगा, उनका कंसेप्ट था देयर इज नो अदर ऑल्टरनेटिव, टीना कॉन्सेप्ट. ठीक है, एंड तभी वो हुआ था रोलिंग बैक ऑफ द स्टेट. रोलिंग बैक ऑफ द स्टेट. इवन इन इंडिया थोड़े से न्यू लिबरल पॉलिसीज वर ब्रॉट इन ड्यूरिंग 1991 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स. जो LPG रिफॉर्म्स है ना, they also brought in neoliberalism in India. So the second option is it attacked the Keynesian notion of the international economic order. This is also correct. Keynesian notion of international economic order क्या था? He had advocated for state intervention. State intervention in economics या in the finances of a country. ठीक है, तो एडम स्मिथ ने क्या बोला था? लेज़र फेयर स्टेट के बारे में बोला था. मतलब फ्री इकोनॉमी फोर्सेस शुड बी अलाउड टू ऑपरेट फ्रीली, है ना. ठीक है, बट जॉन कीन्स had suggested state intervention in the economy in order to ensure equality in the country. So this is also correct कि which of the following. ठीक है, it emerged as a total negation of laissez-faire economics order. So this is wrong. Neoliberalism तो support करता था laissez-faire को. Instead it was against Keynes, है ना. कीन्स का जो नोशन था कि स्टेट इंटरवेंशन काफ़ी होना चाहिए, उसके अगेंस्ट था वो. पर लेज़र फेयर को इट यूज टू सपोर्ट. सो द थर्ड ऑप्शन विल बी रॉन्ग. इट्स एम्फेसिस is on free markets and liberal reforms. This is also correct.
So the incorrect one will be the third option. Next 2014 का question है, we have to match the following. So we have to match the scholars with their respective statements. First statement है, there is no possibility of drawing a sharp line between the will to live and will to power. So will to live and will to power का जो concept था, this was given by रेनोल्ड नाइबर. ठीक है. उसके बाद में in its essence power is an indivisible whole. So this was said by E.H. Carr. वो क्लासिकल लिबरल स्कॉलर थे. So according to him power was something which was a zero sum game. जैसे हॉब्स वगैरह ने भी बोला था. आई एम सॉरी, क्लासिकल लिबरल नहीं है, रियलिस्ट है. ठीक है. नेक्स्ट है, फॉर मिलिट्री रीजंस अ स्टेट शुड बी इकोनॉमिकली सेल्फ सफिशिएंट. सो दिस वाज सेड बाय हॉशफोर. इसको आई विल जस्ट मैच दीज यहाँ पे. And the last statement, the struggle for power is universal in time and space and is an undeniable fact of experience. So this was said by Morgenthau. ठीक है, Hans Morgenthau. ये अगेन एक क्लासिकल लिबरल रियलिज्म का कंसेप्ट है. क्लासिकल रियलिस्ट थ्योरी का कंसेप्ट है कि द स्ट्रगल फॉर पावर इज रियल. स्ट्रगल फॉर पावर रियलिज्म में आता है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन दिसंबर 2014 का है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग रियलिज्म इज नॉट ट्रू पूछा है. सो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज थ्यूसिडाइडिस इज कॉल्ड द फर्स्ट क्लासिकल रियलिस्ट. सो दिस इज करेक्ट. पावर इज द की टू इंटरनेशनल पॉलिटिक्स. दिस इज ऑल्सो करेक्ट. ठीक है, रियलिज्म में पावर को ही मेन कोर मानते हैं पूरे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का. थर्ड है, द मेन गोल ऑफ द स्टेट्स इज सर्वाइवल. दिस इज ऑल्सो करेक्ट स्टेटमेंट. ऑल स्टेट्स, ये इसीलिए हम लोग नेशनल इंटरेस्ट का कंसेप्ट आता है ना. ठीक है, रियलिज्म से नेशनल इंटरेस्ट का कंसेप्ट आता है. उसके बाद में ऑल स्टेट्स डू नॉट पोजेस पावर टू इन्फ्लिक्ट सम हार्म ऑन इट्स नेबर. तो ये गलत स्टेटमेंट है. बिकॉज अकॉर्डिंग टू क्लासिकल रियलिज्म, इवन नॉर्मल रियलिज्म, most of the states possess power to inflict harm on their neighbors. इनका बेसिक रीज़न दी आर्ट्रे ये है कि जो हमारा पावर रहेगा दैट विल बी यूज्ड अगेंस्ट अदर स्टेट्स इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट देयर ओन सेल्फ इंटरेस्ट्स. ठीक है. तो दिस विल बी द रॉन्ग स्टेटमेंट. सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज फोर्थ ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन दिसंबर 2014 का है. Who defined non-alignment as a policy of keeping out of alliances? So this was said by George Schwarzenberger. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन दिसंबर 2014 का है. Who among the following realist thinkers identified three images of politics? So three images of politics का concept was given by Kenneth Waltz. ठीक है. So according to him, there were only three मेन इंडिविजुअल या तो एस्पेक्ट्स बोल सकते हैं हम लोग. थ्री एस्पेक्ट्स इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स. एक था इंडिविजुअल, द सेकेंड वन वाज द स्टेट एंड द थर्ड वन वाज द इंटरनेशनल सिस्टम. ठीक है. दीज अकॉर्डिंग टू हिम ओनली दीज थ्री वर रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट. ठीक है. सो द करेक्ट आंसर इज केनेथ वॉल्ट्स. जून 2015 का क्वेश्चन है. Who among the following is associated with the concept of realistic liberalism? So this concept of realistic liberalism was given by John Hers. So this is a simple question. Next, June 2015 का है. Which one of the following books was written by E.H. Carr? So E.H. Carr had written the book 20 Years Crisis. This is also a very simple question. ठीक है. इन्होंने आइडियलिज्म को क्रिटिक किया था.
and he was in favor of realism. He is a realist scholar. ठीक है. इसके बाद में जून 2015 का ये अगेन क्वेश्चन है. Franz Fanon was the first scholar to use the term third world. To which country did he belong? So Franz Fanon was a French scholar. ठीक है. So the answer will be France. नेक्स्ट क्वेश्चन जून 2015 का है. दिस इज मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है. नहीं, मैच द फॉलोइंग नहीं है. वी हैव टू चेक विच ऑफ द पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड. ठीक है. सो विलियम सी ऑल्सन ने क्या बुक लिखी थी? द ग्रोथ ऑफ अ डिसिप्लिन. दिस इज करेक्ट. फिर G.F. कीनन ने लिखी थी अमेरिकन डिप्लोमेसी. रसल एच फीफील्ड ने लिखी थी द इंट्रोडक्टरी कोर्स इन इंटरनेशनल रिलेशंस. दिस इज ऑल्सो करेक्ट. लास्ट क्या है? रॉबर्ट स्ट्रॉस ने लिखा था ह्यूप एंड स्टीफन. सॉरी, रॉबर्ट स्ट्रॉस ने इंटरनेशनल रिलेशंस अ जनरल थ्योरी. दिस इज रॉन्ग बिकॉज दिस बुक वॉज रिटन बाय मॉर्टन कैप्लान. ठीक है. दिस इज़ अ वेरी फेमस बुक. डू रिमेंबर दिस. और ये बाकियों का भी ट्राई टू रिमेंबर द ऑथर्स एज वेल एज द बुक्स सिंस द क्वेश्चन मे बी रिपीटेड अगेन. ठीक है. इससे वर्बैटिम नहीं रिपीट होगा बट सम ऑफ द बुक्स दे माइट आस्क इन सम अदर क्वेश्चन. कोई दूसरा मैच द फॉलोइंग में एक दो ये वाले लग जाएंगे. ठीक है. सो ट्राई टू रिमेंबर ऑल ऑफ दीज. उसके बाद में है जून 2015 का क्वेश्चन है. Who among the following are supporters of the realistic approach in international politics? ठीक है. तो 4 नाम दिए. हमें पता है कोलम्बस एंड वुल्फ. हाँ, they were supporters of realism. फिर फ्रेडरिक शूमैन was also a realist scholar. निकोलस पाइकमैन नहीं थे. E.H. Carr was also famously a realist scholar. ठीक है. So the answer will be 1, 2 and 4 only. नेक्स्ट क्वेश्चन है जून 2015 का है. Which of the following scholars of international politics did not subscribe to the view that no social service can survive without idealistic aspects? तो ये बोला था आर्नोल्ड वोल्टर्स ने. ठीक है. अकॉर्डिंग टू हिम social service can survive without idealistic aspects also. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन जून 2015 का है. Who stated that international politics includes analysis of political relations and problems of peace among nations. ठीक है. Analysis of political relations and problems of peace. तो इसका आंसर है हैंस मॉर्गनथाउ. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन दिसंबर 2015 का है. मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है. We have to match the books with their corresponding authors. So the first book is International Relations Theory, The Three Traditions. So this was written by Martin White. ठीक है. Next है The North-South Divide and the International System. This was written by N.B. Adams. Next है Human Security. So Human Security was written by Anuradha Chenoy and Taj Baksh and Shakban. The last one is India and the European Union. This was a book written by Gerard Wallace. So these are, since this is a previous year question, so please try to remember all the authors and the corresponding books since it might be repeated in the upcoming examination. फिर December 2015 का question है. Who was of the opinion that the end of Cold War represented the victory of ideal state and liberal capitalism? So this is a famous statement given by Francis Fukuyama. ठीक है. उन्होंने एंड ऑफ हिस्ट्री का हाइपोथेसिस दिया था. आपको याद होगा. वही उसी के बारे में बात हो रही है. सो द आंसर विल बी द थर्ड ऑप्शन. नेक्स्ट है दिसंबर. दिस इज अ रिपीटेड क्वेश्चन. ठीक है. 2 बार पूछा हुआ है ये. दिसंबर 2015 एंड अक्टूबर 2020 में पूछा है ये. दिस इज अ मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन. तो इसमें पूछा है. अच्छा, वी हैव टू डिटरमाइन द डेट्स कि कौन से डेट को दिस इवेंट टुक प्लेस. ठीक है. सो द फर्स्ट इज सोवियत यूनियन जर्मन नॉन एग्रेशन पैक्ट. ये हुआ था अप्रैल 1941 में. ठीक है. उसके बाद में
जर्मनी इन्वेडेड सोवियत यूनियन, ये हुआ था जून 1941 में। फिर जर्मनी ऑक्यूपाइड जेकोस्लोवाकिया, ये हुआ था मार्च 1939 में। एंड जर्मनी इन्वेडेड पोलैंड, ये हुआ था सितंबर 1939। सो दिस इज़ अ टफ क्वेश्चन इन माय ओपिनियन, सिंस ऐसे ईयर्स तो फिर भी आपको याद रहेंगे, मंथ्स का फिर इट बिकम्स क्वाइट डिफिकल्ट। ठीक है, हाउएवर ट्राई टू रिमेंबर दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन दिसंबर 2015 का ही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ modern liberalism? So the options are freedom of the individual as against the authority of the state. This is not really correct, ठीक है, बिकॉज मॉडर्न लिबरलिज्म में थोड़ा सा सोशल वेलफेयर का कंसेप्ट आ गए थे, है ना। जहाँ पे भी सोशल वेलफेयर वगैरह होगा ना, या अफर्मेटिव एक्शन होगा, वहाँ पे द स्टेट, द इंडिविजुअल लिबर्टी विल बी curtailed. Individual liberty is curtailed by the state in order to ensure equality in the country. ठीक है, तो जहाँ पे भी आपको दिख रहा है कि जैसे मॉडर्न लिबरलिज्म, हमें पता है कि अफर्मेटिव एक्शन का कंसेप्ट आ गया था इसमें, सो द फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल विल बी कर्टेल्ड वहाँ पे। ठीक है, क्योंकि वहाँ पॉजिटिव लिबर्टी का कंसेप्ट आ जाता है। पॉजिटिव लिबर्टी में क्या होता है, स्टेट इंटरवेंशन। ठीक है, नेक्स्ट है रिकग्नाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ अ ग्रुप। सो दिस इज करेक्ट, मॉडर्न लिबरलिज्म में ग्रुप्स का इम्पोर्टेंस हैज बीन रिकग्नाइज्ड। Support the limited role of this, supports the limited role of the state. No, this is also not correct, because modern liberalism में state plays a major role, because वहाँ पे concept of positive liberty होता है। वही जो मैंने पहले भी बताया, state intervention will be allowed in order to carry out affirmative action। ठीक है, then the last one is supports state regulation to safeguard the weak। हाँ, so this is also correct. So the correct answer will be 2 and 4 only। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज अ मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन। वी हैव टू मैच द ऑथर्स विद देयर करस्पॉन्डिंग बुक्स। सो द फर्स्ट ऑथर इज बैरी बुजान। तो बैरी बुजान ने बुक लिखी थी पीपल, स्टेट्स एंड फियर। दिस इज अ वेरी फेमस वर्क ऑफ हिज। ठीक है, सो प्लीज रिमेंबर दिस। नेक्स्ट है आई हैंसन। आई हैंसन ने लिखा था द एवोल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल सिक्योरिटी स्टडीज़। ठीक है, द थर्ड वन वॉज केनेथ वॉल्ट्स। केनेथ वॉल्ट्स ने फेमस बुक लिखा था मैन द स्टेट एंड वॉर। फिर है ए वेंट ने बुक लिखी थी सोशल थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। सो दिस इज अ फेयरली सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, एंड प्लीज़ रिमेंबर दीज बुक अच्छे से, बुक्स एंड देयर करस्पॉन्डिंग ऑथर्स। ठीक है, दीज माइट बी आस्क्ड अगेन इन द एग्जामिनेशन। नेक्स्ट है अगेन मैच द फॉलोइंग है। वी हैव टू मैच द राइटर्स विद देयर कंसेप्ट्स या आइडियाज से मैच करने हैं। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव इमैनुअल वॉलस्टीन। सो इमैनुअल वॉलस्टीन हैड गिवन द कंसेप्ट ऑफ डिपेंडेंसी थ्योरी। ठीक है, दिस इज अ वेरी सिंपल आंसर। फिर है वॉन न्यूमन। वॉन न्यूमन वॉज अ स्कॉलर ऑफ गेम थ्योरी। ठीक है, देन मॉर्गनथाउ, वी नो ही वॉज a realist scholar। उसके बाद में फ्रांसिस फुकुयामा, he had given the concept of end of history। ठीक है, so very simple question। नेक्स्ट है who of the following belongs to the British school of realism। तो ब्रिटिश स्कूल ऑफ रियलिज्म में का जो मेजर स्कॉलर्स थे, उनमें से हेडली बुल वॉज अ प्रोमिनेंट फिगर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दिसंबर 2015 का है। Who among the following is associated with the democratic peace theory? So democratic peace theory की one of the major scholars was Michael Doyle। So that is the answer। ठीक है, बाकी जो Kenneth Waltz is from realism, Mearsheimer is also for realism। ठीक है, नेक्स्ट है दिसंबर 2015 का क्वेश्चन है। Which of the following terms of international relations was coined by Nicholas Onoff
in his book The World of Our Making. तो उन्होंने he had given the concept of constructivism. ठीक है, तो उन्हीं से कंस्ट्रक्टिविस्ट स्कूल ऑफ थॉट केम इनटू बीइंग इन इंटरनेशनल रिलेशंस. ठीक है, सो द आंसर विल बी द फोर्थ ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन है जून 2016 का है. Who among the following argued that realism is likely to remain the single most useful instrument in our intellectual toolbox? Realism. So this was said by Stephen Walt. ठीक है, this is a famous statement, quote based question है ये, and please try to remember this quote because this is a very common famous quote. नेक्स्ट क्वेश्चन जनवरी 2017 का है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट्स वाज नॉट विजुअलाइज्ड बाय मॉर्टन कैपलान. तो मॉर्टन कैपलान हैड एक्चुअली गिवन द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ बैलेंस ऑफ पावर के उन्होंने काफ़ी सारे मॉडल्स दिए थे. सो सम ऑफ देम वर, एक तो ये बैलेंस ऑफ पावर सिस्टम, उसके बाद में दूसरा जो उन्होंने इंटरनेशनल सिस्टम का मॉडल दिया था दैट वाज अ लूज बाईपोलर सिस्टम. ठीक है, फिर उसके बाद में टाइट बाईपोलर सिस्टम भी उन्होंने दिया था. हाउएवर कोई भी यूनिक पोलर सिस्टम का मॉडल उन्होंने नहीं दिया था. सो द रॉन्ग आंसर विल बी द यूनिपोलर सिस्टम, फोर्थ ऑप्शन. ठीक है, सो दिस विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट है दिसंबर 2015 का ये है अगेन. Marshall Plan 1947 was also formerly known as what? So it was famously known as the European Recovery Program. ठीक है, मतलब ऑफिशियल नाम ये था बट उसका जो फेमस नेम था वो था मार्शल प्लान 1947 का. ठीक है, नेक्स्ट है जनवरी 2017 का क्वेश्चन है. Which of the events mentioned below is taken as signaling of the end of Cold War? तो ये हमें पता है. दिस इज़ अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. जब बर्लिन वॉल गिर गई थी दैट वाज सीन एज अ सिंबल ऑफ द एंड ऑफ कोल्ड वॉर. ठीक है, सो द आंसर इज द सेकेंड ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन है जनवरी 2017 का है. एट द एंड ऑफ कोल्ड वॉर फ्रांसिस फुकुयामा constructed the thesis of end of history which meant which of the following. तो उन्होंने एंड ऑफ हिस्ट्री का कंसेप्ट दिया था बिकॉज अकॉर्डिंग टू हिम लिबरलिज्म एज वेल एज कैपिटलिज्म हैड वन. अकॉर्डिंग टू हिम द कोल्ड वॉर वाज वन बाय लिबरलिज्म एंड कैपिटलिज्म. सो देयर वर गोइंग टू बी नो मोर आइडियोलॉजिकल स्ट्रगल्स. ठीक है, कोई भी आइडियोलॉजिकल वॉर या स्ट्रगल्स अब ख़त्म हो जाएंगी. सो दैट इज़ वाई अकॉर्डिंग टू हिम देयर वाज एन एंड ऑफ हिस्ट्री. ठीक है, तो इसका ऑप्शन रहेगा थर्ड ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन. जुलाई 2016 का है नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस इज एन assertion and reasoning question. So the assertion is that the end of Cold War signified a shift from ideological politics in international relations. ठीक है, दिस इज़ करेक्ट. ठीक है, उसके बाद में बिकॉज पहले कोल्ड वॉर में क्या होता था, USSR was a socialist state whereas USA was a capitalist state, है ना, capitalist country. और इन दोनों में ड्यू टू दिस आइडियोलॉजिकल डिफरेंस उन दोनों में देयर वाज अ लॉट ऑफ skirmishes which were taking place. ठीक है, however after the cold war अभी आप देखेंगे कि मोस्ट ऑफ द कंट्रीज एक्सेप्ट परहैप्स चाइना, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज फॉलो अ सिमिलर सिस्टम, थोड़ा सा मॉडर्न लिबरलिज्म के लाइंस पे रहता है जिसमें बोथ सोशलिज्म एज वेल एज कैपिटलिज्म प्ले एन इक्विवेलेंट रोल इन अ कंट्री. ठीक है, सो रीजनिंग क्या दिया है, रिलीजियस फंडामेंटलिज्म इज posing a threat to security. See, the statement is correct but this is not at all related to the assertion. दोनों में कोई relation ही नहीं है. ठीक है, so the correct answer will be the second option. Both A and R are true but R is not the correct explanation of A. Next है November 2017 का है. Under Bush doctrine
The USA held states responsible for activities inside their territories and thus acquired the right to act unilaterally against rogue and failed states. This is the correct option. आपने देखा होगा कि अंडर हिम अंडर बुश USA had gone into अफगानिस्तान. ठीक है, वहाँ पे 9/11 हुआ था. उसके बाद में he had sanctioned the US army to enter Afghanistan because according to them it was a rogue state. ठीक है, तो 2001 में शायद they had entered there. ठीक है, so the first option is correct. So that is all for this video. Thank you. Please share and subscribe to our YouTube channel. Please follow our Telegram channel as well. वहाँ पे I have uploaded all the PDFs which are used in this video. ठीक है? And please comment on our videos regarding any content suggestions or if you found our video helpful. So thank you.